हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखें। यह बिल्कुल बेसिक्स है जो आप 9th में 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर, एट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट occupies a space, has mass and realized by our senses are known as matter. Matters are generally classified in two ways. First of all, on the basis of physical properties, and next is on the basis of chemical properties. Now, see matter, nature and classification. Anything that occupies a space, has mass and is realized by our senses, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। Solids, a substance is solid if it possesses definite volume and definite shape are known as solids. For example, sugar, iron, gold, wood, etc. ऐसे सबस्टांस, ऐसे मेटर जिसके शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, उन्हें सॉलिड कहते हैं। Liquids, it has definite volume but no definite shape. It takes up the shape of container in which they are kept. Liquids ऐसे मेटर को कहते हैं जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। वह उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, उसी वेसल का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोलियम और टिश्यू। गैसेस, इट possess neither fixed shape nor fixed volume. गैस का न तो शेप फिक्स होता है और न वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, air, etc. Chemical classification: on the basis of chemical properties, matters are classified into elements and compounds on the basis of chemical properties. Elements: the simplest form of pure substance with definite physical and chemical properties and which can neither be broken nor created from simple substances by any physical or chemical method. Elements, the smallest or the simplest form of a substance which are made up of same kind of atom and it cannot be broken down into simpler form or it cannot be created by simple substances. An element is defined as a pure substance that contains only one kind of atom.
particles, that means molecule or atom may be. There are about 114 elements known as present in which 92 are natural and rest has been prepared artificially in laboratory. अभी तक लगभग 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उसमें से 92 नेचुरल है जो सीधा नेचर से प्राप्त हुए हैं, और बाकी के जो शेष हैं उसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। Elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. Elements को भी क्लासिफाइड किया गया उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, those elements which are good conductors of heat and electricity, and it has the properties of malleability, ductility, sonority and many magical characters. For example, iron, aluminium, zinc, gold, copper, etc. Non-metals, those elements which have not the properties of metals, or we can say, हम कह सकते हैं कि जिसमें मेटल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जिसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, वैसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। जनरली मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स ऐसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में होते हैं। Only one non-metal which is liquid at room temperature, that is bromine, and only one metal which is liquid at room temperature, that is mercury. कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी थे, या कह सकते दोनों से बिल्कुल डिफरेंट थे, उन्हें मेटलॉइड्स कहा गया। फॉर एग्जांपल, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी एंड सो ऑन। Now, compounds, a pure substance made up of two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass. तो कंपाउंड एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसा प्योर सबस्टेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस से मिलकर बना होता है, जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इट्स मास में जुड़े होते हैं, यानी कि इनके मास का रेशियो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता। The properties of compounds are completely different from their constituents. जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना होता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन, तो H2O, इसे हम एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल सबस्टेंस है, ऑक्सीजन एक गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, बट वाटर इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द फायर, डिस्टिंग्विश द कंबस्शन. So the properties of water is completely different from the properties of hydrogen and oxygen. Mixtures, a material containing two or more substances in any proportion is known as mixture. For example, milk, air, gunpowder, etc. मिक्सचर एक ऐसा सबस्टेंस जो दो या दो से अधिक सबस्टेंसों से
किसी भी प्रोपोर्शन में मिलकर बना होता है, कोई फिक्स रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई फिक्स रेशियो ऑफ मास नहीं होते हैं। एंड वन थिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी जिस कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, जिस सबस्टांस से मिलकर मिक्सचर बना होता है, उस सबस्टांस की प्रॉपर्टीज ही मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, वो लॉस नहीं करता, एयर का अपना कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज नहीं होता है। A mixture can be separated into its constituents by physical methods. मिक्सचर एंड कंपाउंड में एक और डिफरेंस है, कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड के द्वारा उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। उसे सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल सूटेबल केमिकल मेथड की आवश्यकता होती है, जबकि मिक्सचर को एनी सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसके कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस में सेपरेट कर सकते हैं। Atoms and molecules. Atoms, the smallest particle of an element, which may or may not be capable of independent existence. May or may not be, because some atoms can be exist freely, but some cannot be. For example, the elements of metals, elements of noble gases can be exist freely, but the elements of gases cannot be existed freely in this nature. Molecule, the smallest particle of a compound which can exist freely and have the properties of compounds are known as molecules. Molecules वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है और जिसमें कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज होते हैं। Molecules are of two types, molecules of elements and molecules of compounds. Molecules are of two types, molecules of elements and molecules of compounds. Molecules of elements. These molecules are made of same kind of atoms and are known as homoatomic or homonuclear molecules. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं उन्हें होमो एटॉमिक या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल H, Ne, H2, O2, O3, P4, etc. These are the molecules of elements. Next is molecules of compounds. These are made up of atoms of different elements and hence are called heteroatomic or heteronuclear molecules. For example, H2O, HCl, CO2, NH3, CH4 and so on. These types of molecules are known as heteromolecules because this contains the different kind of atoms. Properties of matter and their measurements. Generally, we can define the quantities, physical quantities. The quantities which can be measured are known as physical quantities. All the quantities which come across during our scientific studies are called physical quantities. These can be measured. Here describe the fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities.
electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. There are two types of physical quantities: physical and fundamental quantities, and derived physical quantities. Derived physical quantities which are derived from the fundamental quantities. For example, area, volume, density, force, and so on. Relation in temperature. केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो हम ये मेथड में याद रखेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करेंगे। यदि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो केल्विन माइनस 273.15 करेंगे तो हमें केल्विन आएगा। फ़ारेनहाइट के लिए 5 - 9 × F - 32 करने पर डिग्री सेल्सियस आता है, यानी यह फॉर्मूला है चेंज करने का फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। तो हम देखेंगे स्टार्ट से, एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसे। एट 0 डिग्री सेल्सियस इसे केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 तो आएगा 273.15 केल्विन, दैट मींस 0 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस 37 इक्वल टू 310.15 केल्विन। इसी तरह से इसका रिवर्स करेंगे। अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K - 273.15 तो हमें डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब यहां देखेंगे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल 98.6 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 5/9 × 98.6 - 32 तो ये आ जाएगा आपका 66.6। इसे कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 63 3 36 9 36 5 20 7 बचे 35 2 37 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट को जब हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एट -40 फ़ारेनहाइट। -40 फ़ारेनहाइट ध्यान देंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 -40 -32 तो -40 -32 ऐड हो जाएगा -72 होगा। 5/9 × -72 काटने पर आ जाएगा 9 8 जा 72 8 5 जा -40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देंगे यहाँ पर ये एक ऐसा वैल्यू है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर सेम होता है। फ़ारेनहाइट भी -40, डिग्री सेल्सियस भी -40। एट 104 फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट है तो क्या करेंगे, 5/9 × 104 - 32 तो माइनस करके आएगा 72 और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसी का रिवर्स करना चाहें, फ़ारेनहाइट निकालना है डिग्री सेल्सियस से तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट निकालना है डिग्री सेल्सियस से तो क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी एग्जांपल से हम देख सकते हैं, अगर हम लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस एट 37 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5
into 37 प्लस 32, 5 से 37 को 9, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 36, 3 6 प्लस 32, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं और केल्विन, यानी इन तीनों में एक दूसरे में रिलेशन शो किया जा सकता है। इससे हम तीनों मेजरमेंट को आपस में एक दूसरे में कंज्यूम कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज कॉल्ड द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन occurs according to some definite law, some definite rules, and the rules are known as the law of chemical combination. The laws are: first is law of conservation of mass, second is law of constant composition, next is law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, law of combining volumes, इसे हम गैर-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को गैर-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम के लिए गैर-लुसेक ने एक लॉ दिया था जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। First is the law of conservation of mass. It is proposed by Lavoisier in year 1789. Conservation of mass, according to which in any chemical or physical changes, mass is constant. That means the total mass of the reactants is equal to the total mass of the product. Means mass can neither be created nor be destroyed by any physical or chemical process. For example, if calcium carbonate is decomposed on heating into calcium oxide and carbon dioxide, if we calculate the mass of calcium carbonate, then 100 gram, and again calculate the total mass of products, that means the mass of calcium oxide plus mass of carbon dioxide is also 100 gram. Proof of this law of with a chemical change, that means the proof of law of conservation of mass. First is precipitation reaction. A scientist Leroy took solutions of NaCl and AgNO3. इसने दो सॉल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, in a two limbs of Ledon's tubes. Ledon's tube. The tube was weighed and the solutions are mixed. ट्यूब में सॉल्यूशन को लेकर उसका वेट किया गया, उसको देखा गया कि उसका वेट है क्या। After the reaction, when the tube was weighed, the weight remained the same. रिएक्शन के बाद फिर से जब ट्यूब को वेट किया गया तो देखा गया कि रिएक्शन से पहले जो वेट था ट्यूब का सेम वेट ऑफ ट्यूब आफ्टर द रिएक्शन। Next law is law of constant or definite proportions. This law is proposed by J.C. Proust in year of 1799.
लॉ ऑफ फर्स्ट एंड प्रोपोर्शन देसी काउच के द्वारा 1799 में लिया गया था। ए केमिकल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportions by mass। कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स है उसका मास का रेशियो, उसके एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाय मास द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। चाहे तो वो वाटर ट्यूबवेल का हो, वेल का हो, कुएं का हो, रिवर का हो, हैंडपंप का हो, किसी भी सोर्स से रेन वाटर हो, उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास है, रेशियो ऑफ वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो 1:8 होगा। सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8। बट here some also limitation of law of constant proportions. First is this law is not applicable. This law is not applicable if an element exists in different isotopes which may be involved in the formation of compound। अगर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन 3:8 है in the case of carbon 12 atom, but in the case of carbon 14 atom same ratio is changed। when we take carbon 14 then ratio is 7:16। So this law is not applicable for the isotopes element if involved in the formation of compound। Second is the elements may combine in the same ratio but the compounds formed may be different। एलिमेंट सेम हो सकता है, मास रेशियो सेम हो सकता है, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एल्कोहल C2H5OH and CH3OCH3। In this case, the ratio of mass of carbon, hydrogen, oxygen, ratio of mass of carbon, hydrogen, oxygen is 12:3:8, but compounds are different।